بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست پی ایس ایل اسپیشل. اور آپ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ میری کو ہوسٹ ہوتی ہیں صدف راجپوت صاحبہ. اور کیا میچ ہوا ہے آج، ہے نا؟ بہت ہی ایکسائٹنگ، بہت ہی شاندار، اعلیٰ پائے کی کرکٹ جو ہے وہ آج دیکھنے کو ملی. اگین کوئی ہارتا ہے کوئی جیتتا ہے، مگر رزلٹ یہ ہوتا ہے ان دا اینڈ کہ پاکستان جیت رہا ہے. پی ایس ایل جو ہے وہ برانڈ جو ہے مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے، کرکٹ جیت رہی ہے. اور آج مجھے خوشی ہوئی، میں دیکھ رہا تھا کہ انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے کافی ساری ٹویٹس جو ہیں وہ کی ہیں. سو پی ایس ایل جو ہے وہ اس وقت اپنے جیسے کہنا ہے کہ عروج پر ہمیں نظر آتا ہے، اور اسکائی از دا لمٹ. ابھی اور بہت آگے جانا ہے. پاکستانیوں کو خوش دیکھ کر، ناچتے گاتے دیکھ کر میرا تو دل اور خون جو ہے نا بہت ہی بڑھ جاتا ہے. بالکل شاہ جی، ایسے ہی. اور اتنا کچھ ہم نے دیکھا ہے پچھلے عرصے میں کہ پی ایس ایل جو ہے وہ حقیقتاً سال میں ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے جو ایک فیسٹیوٹی کا ایونٹ جو ہے وہ ہوتا ہے. ایسے میلے کا سا سما جو ہے نا وہ آپ کو لگتا ہے. تو جتنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کو مبارکباد، اس لیے پاکستانیوں کو مبارکباد، اور خاص طور پہ ہماری جو انتظامیہ میں کہہ رہا ہوں، جو ہمارے پولیس والے لوگ ہیں، ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جس طریقے سے وہ یقینی بنا رہے ہیں. لوگوں کو شکایات بھی ہیں تھوڑی بہت کہ بھئی بہت زیادہ یعنی کہ حفاظتی انتظامات کی وجہ سے ان کو آمد و رفت میں تکالیف بھی ہے. کل بھی ہم نے اس پر بات کی تھی کہ ہاسپٹلس کے حوالے سے اور ایمبولینسز کے حوالے سے خاص طور پہ انتظامیہ کو جو ٹریفک پلان ہے بناتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، مگر لوگ بھی بیشتر لوگ جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں. سو بہت خوشی کا مقام ہے. اور عمران نذیر ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم ٹو دا شو عمران. ہمیشہ ہمارے شو کا حصہ ہوتے ہیں. ہمارے شو کی جان ہے، پاکستان کی جان ہے، پاکستان کی آن ہے، پاکستان کی شان ہے. اور یہ ہیں عمران ہیں. اور صدف، اور کیا کچھ ہے آج پروگرام میں؟ شاہ جی بہروپ نگر سے آج ہمیں جوائن کیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے. السلام علیکم، کیا حال چال ہے وسیع شاہ صاحب؟ ابھی تک یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو تو لینے آیا ہوں. آئیے چلیے اڈیالہ جیل چلتے ہیں. نہیں لیکن آپ نے ہمت کی، آپ نے تو بہرحال اپنے آپ کو پیش کیا گرفتاری کے لیے. بالکل، میں گیا. او میری گرفتاری لیندے نہیں سن پائے. میں کیا لے لو گرفتاری، کیونکہ شاہ محمود جب اندر جائے گا تو لوگ کہیں گے اگلا وزیر اعظم ریڈی بیٹھا ہے. یہ بات خان صاحب تک پہنچی نا تو خیر نہیں ہے آپ کی. تسی وچوں ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ. کیا کہہ رہے تھے آپ؟ تسی وچکار پھپھی نہ بنیا کرو. اچھا جی، سیٹھی صاحب بھی موجود ہیں، ٹسوری صاحب بھی موجود ہیں. مگر مجھے لگتا ہے کہ آج ہم آغاز جو ہے وہ ہم اپنے دوستوں سے بھی کرتے ہیں، کبھی عمران صاحب سے کرتے ہیں. مگر آج کیا میچ ہوا ہے عمران، ہے نا؟ اور اس پر آپ سے بہتر ہم نے تو انجوائے کیا ایک عام یعنی کہ ناظر کی حیثیت سے، ٹھیک ہے نا، ایک آڈینس کی حیثیت سے. آپ نے کیسا دیکھا آج کے میچ کو؟ آئی تھنک آؤٹ کلاس ہے نا، مزہ آ گیا. بات وہی کرکٹ کا مزہ آ گیا کہ کرکٹ تو اچھی ہو ہی رہی ہے، لیکن ہماری پاکستان پی ایس ایل جو ہے وہ بہت اوپر جا رہی ہے. اور دیکھیں ایک ہارے گا ایک جیتے گا، لیکن نو ڈاؤٹ آج تھوڑا کراچی ہارنے کے بعد بھی میں کریڈٹ ضرور دوں گا، کیونکہ کرکٹر ہونا تو کرکٹ فائٹ جو ہے نا وہ نظر آئی آج. انفارچونیٹلی دیکھا جائے تو شعیب ملک آج جو کہ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ 11 ਕੋ ਸਕੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਰਾਚੀ 3 ਹਾਰੀ ਹੈ ਜੀ 3 ਸਕੋਰਾਂ ਤੋਂ. ਅਗਰ 3 ਰਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਮੈਚ ਜਿੱਤ. وہی تو میں کہہ رہا آج روز دنیا تعریفہ کرنا تو سکور ہی نہیں کرتا یار. نہیں انفارچونیٹلی کہ حیدر علی اور شعیب ملک ان دونوں کی پارٹنرشپ جو ہے نا وہ بہت معنی رکھتی تھی. اگر میں جمی ونس کی بات کروں یا وائٹ کی بات کروں تو انہوں نے عماد نے بھی آج اوپننگ سٹینڈ دیا ہے. آئی تھنک میرے حال میں آؤٹ اسٹینڈنگ. اور میں ایک ٹائم پہ سمجھ رہا تھا کہ آج کراچی جیتے گی اور بہت کلوز کہاں کلیپس کی ہے شعیب ملک اور حیدر علی. ان دونوں کی جو پارٹنرشپ تھی نا وہ بہت معنی رکھتی تھی، لیکن ان کی وجہ سے تھوڑا جو ہے نا لیٹ ڈاؤن ہوا ہے. لیکن پھر کریڈٹ عماد وسیم جس طرح انہوں نے اننگز کھیلی اور آؤٹ کلاس. انفارچونیٹلی چلے ایک لڑائی جو ہے نا وہ ٹیم ورک، مزہ تو آیا نا، آج مزہ آیا. جسے کہتے ہیں نا کہ ہار کے بھی لوگ آپ کی تحسین کر رہے ہوں، داد دے رہے ہوں، سب سے بڑی جیت یہی ہوتی ہے. جی جی بالکل بالکل. مگر کراچی کے لیے آج کی جیت تھی بڑی امپورٹنٹ، کیونکہ میں خبر 5 میں سے 4 میچز جو ہیں وہ لوز کر چکے. لیکن ਅੱਧੇ ਕਰਾਚੀ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈ. ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਯਕੀਨ, بڑیاں امیداں لائیاں سنچا. اچھا ٹسوری صاحب، میں آپ کچھ کہنا چاہے تو مکمل کر لیں، پھر مجھے عمران صاحب سے ایک بڑی امپورٹنٹ کرکٹ تے تبصرہ تے تسی کردے رہنا، میں ایک تہاڈی تعریف کرنا چاہتا.
ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਰਟ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੈਕੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਜੈਕੀ ਚੈਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ साहब साहब क्यों नहीं कह देंगे कि मैं जैकी चैन तो मिलता हूँ? ਜੈਕੀ ਚੈਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਰ नहीं, जैकी चैन दुनिया को पसंद ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਕਾਂ ਕੱਟ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਾਰ तानिया तानू ओदियां किक्का नहीं पसंद है ਨਹੀਂ ਚੀਕਾਂ ਹੁਣ ਤਬਸਰਾ ਕਰੋ ਸਰ अच्छा इमरान, ज़रा आज थोड़ा सा हम मैच को कम रिव्यू करते थे, जेनेरिक हम बात करते थे, मगर आज मैं आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगा, नाज़रीन भी जानना चाहेंगे कि हमने देखा कि टेस्ट में टॉस की बड़ी अहमियत होती है, वनडे में टॉस की बड़ी अहमियत होती है, T20 में भी होती है, मगर आज कराची ने टॉस जीता और फिर उसके बाद बैटिंग की दावत आई थिंक मेरे ख्याल में ये थोड़ा कह सकते हैं कि गलत डिसीजन है। उसकी वजह क्या, क्योंकि आपकी बैटिंग उतना अच्छा क्लिक नहीं यही करती मैं आपसे और आप वो टीम कॉम्बिनेशन नहीं है जो कि तो आपको ज़रूरत ही नहीं है प्रेशर लेने की। आप बेसिकली आपको चाहिए थे पहले बैटिंग करते, यही टोटल अगर बोर्ड पे सेट होता तो मुल्तान सुल्तान डिफरेंट पोजीशन में होती। लेकिन चले ये भी थोड़ा कह सकते हैं एज ए क्रिकेटर मैं ये बात करूंगा कि क्योंकि जो प्रेशर में टीम होती है ना, वो इस टाइप का जब परफॉर्मेंस देती है, नो डाउट वो हार गए हैं, लेकिन ये परफॉर्मेंस कम से कम थोड़ा कॉन्फिडेंस तो लेके आई। स्पेशली ओपनर्स की अगर मैं बात करूं, वाइट की या जिमी वेंस की, तो उन्होंने जिस तरह स्टार्ट दिया, बीच में वही बात के बेन कटिंग अगर थोड़ा पहले आते थोड़ा तो मे बी सिचुएशन डिफरेंट थी, क्योंकि वो एक बड़ा स्लोगर बैट्समैन है और उसके हाथ में उस तक गेम ही निकल गई थी। अब 2 ओवरों में 40 रन, सच्चा जी बड़ा मुश्किल बहुत 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 अच्छा, मुश्किल अब इसमें एक सवाल और पैदा होता है कि हम तो दाद दे रहे हैं कराची किंग्स की बैटिंग को कि उन्होंने बहुत अच्छा चेस किया, मगर वो जो 196 का टोटल लगा है, तो बॉलर्स का क्या काम था? देखिए मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि इनकी और अगर ऐसी पिच नजर आ रही थी तो आपको फिर क्यों देखिए अगर मैं इनकी बॉलिंग की बात करूं तो देखो ना, आपकी बॉलिंग उतनी स्ट्रांग नहीं नजर आ रही है आपको, और आपको पता है कि फॉर्म में नहीं है, आपकी पार्टनरशिप बॉलिंग में नहीं लग रही, तो इसी वजह से मैं कह रहा था कि आपको पहले बैटिंग करनी तो चाहिए। कितनी बड़ी गलती है कैप्टन की? नहीं, ये तो गलती तो बहुत बड़ी है, क्योंकि ये गलती आपके सामने है मैच हारने के बाद। अच्छा, अब T20 के इस फॉर्मेट के अंदर ये हम आपसे जानना चाहेंगे, कुछ चीज़ें आप बहसियत क्रिकेटर आप ही जानते हैं, हम चाहे कितना भी पढ़ लें देख लें, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो इधर पानी दे विच तैर रहे हो ना। जी जी। अब पूरी टीम और मैनेजमेंट ने क्या पिच का उससे पहले मुआयना नहीं किया होगा? इमाद जब गया होगा तो ये सोच के गए होंगे कि, या मुशावरत के बाद गए होंगे कि जी टॉस जीता तो बैटिंग देंगे, या उसी मोमेंट पे इमाद ने फैसला होता क्या शाह जी, जब आप ग्राउंड में जाते तो राउंड को 2 ढाई 3 घंटे 2 घंटे पहले आप ग्राउंड में जाते हैं, और जाते ही आप कप्तान का पहला काम ही होता है स्ट्रेट पे कोच कप्तान, और आप पिच पे जाते हैं, आप पिच को रीड करते हैं, जाके पूरी पिच का मुआयना करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, देखिए T20 में मेरी नज़र में टॉस वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे टॉस T20 के किए हुए हैं, लेकिन होता क्या है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे स्ट्रांग रहे, उसके मुताबिक आप फैसला उसकी वजह आज अगर पिच कराची को थोड़ी नज़र आ रही है, डेफिनेटली कप्तान है, उसको आइडिया तो होगा, और इसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि चले हम बाद में चेज करते हैं। लेकिन ये सोचना चाहिए था कि यार हमारी बॉलिंग उतना स्ट्रेंथ नहीं, अभी हमारी बैटिंग जो है ना उसको पहले जरा फ्री हैंड दे, ताकि एक अच्छा टारगेट जब सेट होता है तो फिर क्या बॉलर भी शेयर हो जाता है, बॉलर भी कहता है फिर खुल के आता है। अगर मैं यहाँ पे 2 बॉलर्स की अगर बात करूँ, स्पेशली इसानुल्लाह, क्या आउटस्टैंडिंग बॉलिंग है, ये एक वन मैन शो अभी तक हो रहा है, और मेरी बड़ी बेस्ट विशेज है और इस बच्चे के साथ कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा खेले और लॉन्ग टर्म के लिए खेले। और यहाँ पे देखे ना, वो एक 4 ओवर में 17-18 रन उसने दिए हैं, और देखे आउट नहीं किया, लेकिन वही जो है मैच विनिंग बॉलिंग वही बनती है। और कराची को आई थिंक मेरे ख्याल में आज पहले बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि प्रेशर रिलीज होना था। आप 160 70 80 भी करते तो डेफिनेटली मुल्तान पे प्रेशर होता है, क्योंकि सेटिंग बैटिंग जब आती है ना, फिर आपने हर ओवर में जो है ना एवरेज साथ लेके चलनी होती है, तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है। उसमें क्या होता है कि 1 ओवर की एवरेज ज़रा कम हो तो फिर अगले ओवर में बैट्समैन भी पैनिक होता है। अच्छा, ये बताइए भाई साहब, क्या आपने फिर फ़ोन उठाया, अली तरीन साहब को दाद दी कि भाई दोनों मुल्तान के हैं, मुबारक हो, मुल्तान जीत गई? आज तो चौथा मैच जीत गए शाह जी, कुछ तो चंगा बोल दो, एंड तुसी भी मुल्तान दे ही हो। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਮੈਚ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। जिन्नी ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ खुदा ਦਾ ना जा चंगा बोलना। चलो बोल लो। एक मिनट है। अच्छा वसीम, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी फरमाइए। वैसे तो सारा क्रेडिट मुझे है PSL का, और ये मैचेस बहुत अच्छे हो रहे हैं। नहीं, आपका बहुत बड़ा क्रेडिट है, हमने हमेशा ये बात मगर आज के मैच में एक ऐसी हरकत हुई है कि जिससे मेरा ब्लड प्रेशर शूट कर गया, और मुझे इतना गुस्सा चढ़ा कि मैं बता नहीं सकता। ऐसा क्या हुआ? कैरन पोलार्ड ने कैच पकड़ के
वही हरकत की है जो 92 के फाइनल में उसने की थी। यूं क्या मतलब गेंद को पकड़ के, क्या मतलब? ये जो लड़के गैच पकड़ के शोखे हो जाते हैं ना, मुझे बहुत बुरे लगते हैं। वो कह रहा था डीजे ब्रावो। सर कराची ने बड़ा डिसाइड किया सर। आज हाँ, अफसोस हुआ आपको? जी मैं तो इन फ्यूचर अपनी टीम बनावांगा सर। अच्छा, क्या कराची- नाम रखेंगे उसका आप? कराची गोल्ड 24 कैरेट ਦਾ कप्तान फारूक सतार सर, वाह कीपर जड़ा है वसीम अख्तर सर, वाह। तो फिर ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ कराची ओल्ड। सर मेरा फास्ट बॉलर मुस्तफा कमाल सर। वाह, यकीन तो आप तो सबको इकट्ठा करने जा रहे हैं फिर? जी मैं सारे ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। अच्छा, ਆਪੇ ਹੀ ਚੌਕੇ ਛਿੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਨੇ। अंदर मैच हो रहा है, ये मांगते फिरेंगे, लियाओ जी। तो आपकी क्या जिम्मेदारी होगी उसमें? सर मैं ओनर होवांगा। हाँ, कामरान टिसोरी की टीम होगी। जी सर, वाह, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਚੇਨਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਵਾਹ। ਸੌਰੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਨਾ ਦੇਣ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि मैं सोना नहीं पहनता। ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ मैं ਉਹ ਲੈ ਆਉਂਗਾ। मुझे को बहुत ज्यादा शौक नहीं है। इनसे मुख्तसर सी बात पूछिए कि इनका कप्तान कहाँ होगा, पाकिस्तान में या फिर बरतानिया में? ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡੰਡੇ ਪਵਾਏਗਾ। इनका उससे ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? सियासी जमात से कुछ ਕੋਈ नहीं। ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ मैं गवर्नर सिंध हाँ, मैं सिर्फ चेना और गौज खबीरा गौज़मान। खबीरा गौज ये तो आपने मुस्तकिल ही अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। सर मैं कहना मेरा पूरा टब्बर खान लग पिया हाँ जी, हाँ जी, शाह जी, बंदा बात जुबान है, खांदा गाओ जुबान। सेठी साहब की करन डे? अच्छा, आप कितनी मिकदार में इस्तेमाल करते हैं? सर मैं ते हुन लग गया वां, मैं ते जनाब सालन यूज नहीं करदा। क्या मतलब? रोटी नाल खमीरा गौज़बान खाना जी। विच दो मूलियां पांदा, दो गाजरा पांदा ते गाओ जुबान खांदा। नहीं, वो तो आपकी मतलब बहुत बुरे असरात हो सकते हैं। नहीं, नहीं, किडनी कोई- विडनी ये वो मसाइल इससे बहुत बुरे क्या होंगे वसी? बहुत कलील मिकदार में इस्तेमाल करना होता है। नहीं सर मैं ते भरपूर तरीके नाल सर अच्छा, इस्तेमाल कितना लेते हैं ये स्लाइस से भी ला लेंदा। यार? वैसे ये ख्याल तो हमदर्द वालों को भी नहीं आया होगा। स्लाइस में क्या, ये तो हाथ पे लगा के चाट भी लेते हैं। आप हमेशा ऑनर ऐसी बात करते हैं कि जैसी ब्रेक हो सबसे पहले आपको ये समझाया जाए कि ऑनर क्या कहना है, क्या नहीं कहना। नहीं लाइव समझ आती। सर सॉरी मैं तोड़ी ब्लैक कैट नु मैं नहीं, वो अगर चाहें तो मुझे मैं क्या इतराज नहीं नहीं कर थैंक सकता? यू लेकिन शादी, मेरे मुझे नहीं क्या ख्याल कि जरूरत है असली इनकी? असली नहीं नहीं असली हो नकली हो, मुझे इससे कोई लेना देना। ਤੁਹਾਨੂੰ नवीद दी कसम ले लो। आप नवीद को दे दीजिएगा ना, वो अगर कबूल कर ले वो दे देंगे अपनी बेगम को। नवीद ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। क्या मतलब है? वो सारियां मांग लेंदा। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ उनके ਕਿਵੇਂ। शौहर हैं, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ਚਲੋ ਹਲੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। उनके पास बहुत अच्छा यकीन नवीन की करो, बारी चेन- आई तो एक इनको 4-4। ਉਹ ਚੇਨ ਪਾਉਣਗੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ होएगी। अच्छा आप खुद दे दीजिएगा। अच्छा ये अच्छा, मैं बनवाता नाज़रीन को बताता चलूं, वैसे तो हमारे देखने वाले जानते हैं कि नवीद जो हैं वो सदफ के हस्बैंड हैं और बड़े मारूफ फैशन फोटोग्राफर हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या आपने वैसे कभी उनसे फैशन शूट करवाया? जी जी मैं कैसे करवाएंगे आप? तो ये गाओ जबान और इसके चेनों के साथ करवाएंगे? जी सर मेरा उन्होंने फोटो शूट कैसे स्टाइल बनाएंगे? जी सर उन्होंने फोटो शूट कीता है जी। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕੈਮਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗਨ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। कैसे स्टाइल बनाएंगे टिसोरी साहब? वाह, ये तो लड़कियों वाले स्टाइल है, शूट इंज ही कराई देना जी। मर्दों वाला स्टाइल बनाएगा। मर्दों वाला आप बताएं। ए चेन फड़ी होगी नाल जनाब खमीरा गौज़बान खड़ा होगा। नाज़रीन स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त PSL स्पेशल। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त PSL स्पेशल में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। और क्या कर रहे हैं टिसोरी साहब? टिसोरी साहब को शूट नहीं हो रहा है, यहाँ ऑन एयर लाइव जा रहे हैं। सर मैनू जरा पॉज ते बनान दियो। नहीं तो मगर यहाँ तो कोई नवीद साहब नहीं है, कोई फोटोग्राफर नहीं है। एहसन तालिश साहब नु जान दियो कराची। जी जी, एहसन तालिश इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। सर ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਹੀਰੋਇਨ ਸੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। माशाल्लाह शाह जी पोज इंज बनाना जिवें बिल्ली ਨੂੰ करंट लगा ਹੁੰਦਾ है। वैसे वैसे वसी जरा बात मुकम्मल हो जाए इमरान साहब। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਆਡੀਅנס ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਲੈਪ ਹੋ ਜਾਣੀ।
वेरी गुड इसके अरे ठहर जाओ, बात मुकम्मल होने दो। वेरी गुड अच्छा इमरान, आपस की बात है, इन्होंने मुझे खुद ही बताया। वेरी गुड इमरान, बहुत अच्छी जुगत कर रहे हैं। अल्लाह सारी जिंदगी जुगत ही करता रहे। अभी तो आप पाउट भी कर रहे थे। नहीं पाउट ते ने एक होर जुगत कर देनी। अच्छा, मैं नहीं वैसे कर- कैसे किया था पाउट आप? ओह माय गॉड, इतना बुरा पाउट नहीं वैसे होता। ये तस्वीर लेके उसके नीचे लिखा जाए दिमागी तवाजुन खराब होने से 20 मिनट पहले। उम्र दे साहब नाल जुगतां करदा है। किड्डी अच्छी इमरान ने जुगत। और जिस सीरियल में एहसन तालिश इसे ले रहा है उसका नाम है मेरे पास पागल है। नहीं, जो पागल जो है ना वो भी हमारी मोहब्बत और तवज्जो के मुस्तहिक होते हैं, और पागल का लफ्ज़ इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। तेरी गल्लां तो हो ही जा रहे हो। और मैनू उम्मीद सी तुसी ये अच्छी गल करोगे, क्योंकि जदों साडे चो कोई चवल मारदा तुसी 2 मिनट ला लो। हमारा देखिए सोसाइटी का अलमिया ये रहा है कि जो जहनी अमराज में मुब्तला लोग रहे हैं उनको हमेशा हमारे माशरे ने, बेशतर माशरे ने मजाक उड़ाया। जी सर। हालांकि वो बहुत ज़्यादा तवज्जो के मुस्तहिक होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो शदीद जहनी कर्ब में मुब्तला होते हैं। उनको तो जिस्मानी जो लोग तकलीफ से गुजर रहे होते हैं उनको भी बहुत मोहब्बत की ज़रूरत होती है, मगर जो जहनी कर्ब से गुजर रहा होता है उसको तो बहुत शदीद मोहब्बत की, तवज्जो की, इलाज की ज़रूरत होती है। अच्छा पागल बंदे नू थोड़ी जी तवज्जो दईए ना सर, उस तो डबल देन लग पे। मैं तो डरदा नहीं तवज्जो देता। आप कुछ कह रहे थे? गल कर लवा। जी जी प्लीज़। करो। देखिए ये जो पोज बना रहा था, बना रहे थे बना रहे थे, गवर्नर से। ये क्या पोज बनाएंगे जो शाह महमूद ने जे उसमें पुलिस की गाड़ी में से पोज बनाए जो हैं। प्रिजनर वैन थी यहाँ। जी सर। अरे ये तो जेड़े पोज हुन जेल दे अंदर बनने ने वो किसी ने नहीं देखने। अच्छा ये बताइए। आगे भी तो देखिए, एक और भी है। जी जी वो भी ये कार्टून लग रहा है। ये बताइए, अगर ज़्यादा दिन रहना पड़ गया जेल में तो क्या मसरूफियत होगी आपकी? कुछ पढ़े लिखेंगे, कोई किताब लिखेंगे, क्या करेंगे? वो नहीं शाह जी उथे लूडो लै या ताश ला के खेलते रहेंगे। नहीं रही साहब हैं तो टेस्ट वाले। इन भाई ने मेरा पंच ले लिया है। चले मैं दोबारा पूछ लेता हूँ, क्या मसरूफियत होगी आपकी? देखिए जेल में हमने बहुत ही मुस्बत काम करना है। सबसे पहले तो खान साहब का जो इंस्ट्रक्शंस आएंगे उसको हमने फॉलो करना है। मैंने जेल से सुरूंग कढ़नी है। अच्छा, जब इंस्ट्रक्शंस आएगी उसके बाद मैं, असद उमर और दीगर लोग, एजाज चौधरी साहब भी हैं, बिल्कुल चीमा साहब भी हैं, बिल्कुल ताश निकालेंगे और शुरू हो जाएंगे। और अंदर एक करी फिर फड़े जाने। बड़े सियासी लीडरान जब जेल जाते हैं तो किताबें लिखते हैं, अपने तजुर्बात लिखते हैं, ये हर काम जूती ते लिखी बैठा है। और उस मौके को इस्तेमाल करते हैं। जो किताबें वो अपनी मसरूफियात की बायस नहीं पढ़ पाते हैं, उन किताबों का मुतालिया करते हैं, अपने बिल्कुल। इल्म में, मैं अपनी बल्कि सच सियासी बात- बसीरत में इजाफा करते हैं। सच बात बताऊं, मैं किताब लिखूंगा बैठ के, शाह महमूद जेल से वजीर आजम की कुर्सी तक। क्या बात- तुसी सिर्फ उते ही किताब लिखना, जेलर का रवैया। और इसका मुसविदा अगर खान साहब तक पहुंच गया तो फिर फूफी। आप शायद कुछ पूछना चाह रही थी सेठ मैं ये साहब। आपसे पूछना चाह रहा था। नहीं ये सदब आपसे कुछ जी पूछना मैं चाह आपसे जी, पूछना जी, चाह जी, रही जी। थी। आप पिछले 3 दिन से शो से गायब थे, कहाँ रही। गए? हाँ भाई, कहाँ गए हुए थे आप? वसीम मुझे बड़ी हमने कहा दोबारा आपकी शायद कोई तस्वीर आएगी, वो टेम्स तो खैर नहीं था, नहीं, मगर नहीं। किसी जनाब नदी में आप होंगे, मियाँ साहब होंगे, कश्ती होगी, मजे ले रहे होंगे। नहीं वसीम मुझे बहुत इमरजेंसी में दुबई जाना पड़ा। वो मैं मीटिंग ते गया सा ते होटल च अपना तौलिया ते जुराबा भुल आया सा, वो लैन गया मैं। ओह, ये बात करनी थी आप। जी सर, तानू क्या है ना जी 24 घंटे च एक फिक्की गल। अच्छा मैं आपको बताऊं, पहले दिन से आप ये बात कर रहे हैं। जी सर। हालांकि मेरे ख्याल में लोग हंस भी लेते हैं इस पे, लेकिन मुझे अंदाजा ये हुआ कि इसको यूँ होना चाहिए कि 24 घंटे ये 23 घंटे और 59 सेकंड फिकी करते हैं। अच्छा नहीं शायद अच्छा आपका बात कहना है मेरी मतलब कि सारी ही पिकी है। और एक सेकंड जेड़ी अच्छी गल हुंदी उथे ब्रेक ले लेंदे। ये तो फिर साजिश हुई ना। अच्छा बात मेरी अच्छी होती है तो आप ऐसे करके उसको फिक्की करते हैं। बात नहीं, सही होती है। आपने मुझे कहा कि जी देखे ना, अब हम तो लोग जानते हैं शो कैसे बनता है। आपने कहा कि मैंने पूछना कि मैं ना
सदफ ने कहना कि मैंने पूछे कि जी मैं उसके पूछे दिन जी, क्यों मैं गायब रहे? क्यों? अच्छा हमने कहा जी बड़ा को बड़ी अहम बात आपके जहन में आ गई, बस हमने है। पूछ लिया। आपने कहा जी मेरी तौलिया रह गई थी वहाँ यार। अरे कोई बात नहीं, फिर सॉक्स क्या भी हुआ? चलो मिट्टी पा दो ये देते हैं। ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿੱਕੀ ਕਰ ਦੇਗੀ, बदल के देख लवो। अच्छा इमरान, कि अब जुराबा? कराची यहाँ से आपको आगे जाता दिखाई दे रहा है टूर्नामेंट में? अब थोड़ा मुश्किल हो गया कराची। कितना मुश्किल हो गया? 80-90% अब मुश्किल है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आगे अब हो गए इनके 5 मैच, अब रह गए 5 और 5 के 5 कंटिन्यू जीते थे, उसके बाद 6 मैच जीते हैं। लेकिन ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜੀ, 5 ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਫਾर्म जी जी आई विश, और मेरी विश है, बड़ी टीम है और डेढ़ में तो खैर सारी बड़ी हैं, लेकिन ये कराची लाहौर ये हाँ, ऐसी बड़ा टीम है, brand, बड़ा इनका इंटरेस्ट बीच में रहना चाहिए। लेकिन आई विश के जीते, मच बेटर। आप कह सकते हैं कि अब थोड़ा जिस तरह से ये आज हारे हैं, इसे कहते हैं ना मुकाबला करके हारे हैं, इसके बाद अगले अगर किसी टीम को 5 मैचेस जीतने हो तो कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ होता है? हारने आई के थिंक बाद मेरे ख्याल में हार जरूर है, लेकिन बात वही है कि कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अप तो जरूर हुआ अप हुआ होगा। डेफिनेटली जब आप अच्छा हारने के बावजूद। स्पेशली बैट्समैन जो उनके फॉर्म में है, तो आई थिंक मेरे ख्याल में थोड़ा कॉन्फिडेंस बॉलिंग में आपको लगता है कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी या आगे जा? बॉलिंग में थोड़ा इनको इनके पास बैकअप में क्या क्या है? और अब शाह जी अब पूरी साइड तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कल हम बात कर रहे कि जी आए ही नहीं है, क्योंकि अब जो लेकिन दो तीन प्लेयर्स तो आ रहे हैं। मैं आज पढ़ रहा था कि इंग्लैंड के हाँ शायद वो प्लेयर्स देखे ना, अब सारे तो नहीं आए रही मगर है। आ रहे हैं। अब जब न्यूज़ आती है तो हम लोग क्रिकेट के जब तक ड्रेसिंग रूम आप शेयर नहीं कर लेते तब तक कुछ कह नहीं सकते। बेंच स्ट्रेंथ अब देखनी पड़ेगी कि कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि साइडें चेंज होती है जब प्लेयर्स भी चेंज होते हैं। अब डिपेंड करते हैं कि अगले मैच में ये क्या चेंजिंग है, लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में बॉलिंग में थोड़ा जो है ना इनको चेंज लाना चाहिए। ਬੋਲਰਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੀਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕਰ तो ਦੋ, क्या खाएं? झींगा मच्छी खान, गरम चीज़ां खान, जरा स्पीड मेरा ਵਧੇ। ख्याल था आप इसका मशवरा देंगे। नहीं नहीं ये बॉलर ना खान, क्यों जाम हो जाएंगे। शाह जी दही चवट्टे पा के खान, स्ट्रांग हो जाएंगे ना। नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं क्या जरा गर्म जोशी, जरा हीट आएगी जिस चलो थोड़े कोले भी पा लें। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਾ ਲਈ। नहीं नहीं पागी पैगी। जो बच्चों मैनू फॉलो कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अगर ज़्यादा दिन रहना पड़ा तो अकेले रहना पसंद करेंगे आप या अपना एजाज चौधरी साहब के साथ या चीमा साहब के साथ या असद उमर साहब के साथ? ਮੈਨੂੰ ਕਲਿਆ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ? सारे इकट्ठे रहने दे वो, अच्छा। ताकि पता चले कि शाह महमूद के साथ पूरी पीटीआई है। अब यहाँ से फिर ना कह देना कि खान साहब तक बात चली गई तो फिर क्या करोगे? इनको बताया ना शाह जी कि लूडो ताश 4 बंदे तो कम से कम होने चाहिए ना, अकेला तो नहीं खेलते। बिल्कुल ये बात तो है ना। देखो वक्त गुजारने के लिए लूडो की 4 टीमें होती हैं, फिर ताश के लिए भी कुछ 4 लोग होने चाहिए, फिर कैरम बोर्ड भी वहाँ पर चलेगा, बहुत कुछ होगा। लेकिन बात दरअसल में ये है कि जो आज मैं ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ वो मैच के हवाले से। जी जी ज़रूर कहिए। मुल्तान क्यों जीता? क्यों जीता? एंड पे बहुत कम स्कोर रह गया था, कराची जीतने वाला था, 3-4 मुझे खबर आ गई थी, मैंने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके एक फूक मारी है तो काम हो गया। वाह, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸਿਆਸੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। वो कैसे? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। नहीं वो तो इलेक्शन की तरफ जाएंगे फिर तो ये क्यों? तो देखिए इनका तो मुतालबा ही यही है कि भाई इलेक्शन हो। अगर इलेक्शन का ऐलान हो जाता है, आज देखिए बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई है, उस पर हम ज़्यादा बात तो इसलिए नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि सो मोटो नोटिस लिया है और 9 मेरे अगर जो मैंने चूँकि सरसरी देख पाया, मैं मैच भी देखना था और आज आते हुए तो 9 यानी कि 9 रुकनी बेंच जो है, बड़ा बेंच जो है वो बनाया है तो और ख़ुद सो मोटो एक्शन लिया तो बहुत बड़ा फैसला जो है वो लगता है कि भाई आएगा। तो अगर इनकी जो रिक्वायरमेंट है, इनका मुतालबा पूरा हो जाता है इलेक्शन का, तो फिर तो मेरे ख्याल में इनकी जेल भरो तहरीक वाला मामला जो है, चूँकि इनके मकासद तो पूरे हो जाएंगे, फिर ये क्यों जेल भरेंगे? फिर तो इलेक्शन की तरफ जाएंगे ना। बिल्कुल। क्यों जी ऐसे ही है। बिल्कुल, ये हमारे मकासद पूरे हो जाते हैं, हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे और फिर शाह महमूद वजीर आजम बन जाएगा। क्या? अच्छा, और अगर ये खबर पहुंच गई इमरान खान साहब तक? ये फिर तो बड़े अपना नाम वसी शाह छोड़ के फूफी शाह। नाज़रीन स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में हमें बहरूप नगर से एक और इंतहाई अहम शख्सियत ज्वाइन करने वाली है। कहीं नहीं जाइएगा, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त PSL स्पेशल। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त PSL स्पेशल में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। सदफ साहबा, क्या है प्रोग्राम के अगले मरले में?
शाह जी अभी हमें ज्वाइन किया है चौधरी परवेज इलाही साहब ने। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ? बहरूप नगर से ਜੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਛੁਰੀਆਂ ਚਾਕੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੰਜ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਪਤਾ ਕਿਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਭਾਲੂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਰਿਆ ਹੋਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਹੋ ਜੀ। सर सलाम। यार ये होता है सियासतदान है ना, इसको कहते हैं सियासत। है ना, इसको कहते हैं सियासतदान। ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ हाँ, और अगर इस शाह जी, वक्त अगर ये मैं कल शो में ना आया तो समझ आइएगा। नहीं वसीउल कल्ब है, वसीउल कल्ब है। अलबत्ता अगर ये पावर में होते, आप खेल रहे होते तो हंसी मजाक करते आपको और पीछे से ऑर्डर जारी कर देते कि ये जो तक मैं इक़्तिदार चाहे टीम इज ना हो। बिल्कुल। अच्छा जी, ये बताइए कि वो आज गए, शाह महमूद कुरैशी भी गए, सब लोग गए, अब आपको मरकजी सदर बनाया जा रहा है पीटीआई का। जो इत्तलात अब तक आई हैं फवाद चौधरी साहब के हवाले से, बड़ा इंपॉर्टेंट ओहदा जो है इस मर्जर के बाद जो पीटीआई का और काफ लीग के उस धड़े का जो आपके साथ है, लाजमी बात है चूँकि चौधरी शुजात की भी तो एक हैसियत है ना, और बुनियादी तौर पे तो उन्हीं की पार्टी तस्वुर होती है कागजात में। बहरहाल ये एक अलग बहस है। तो आप जेल भरो तहरीक में नहीं जा रहे जी? ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਓਏ ਵੱਡਾ ਬੂਆ ਖੋਲੋ ਡਿਪਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬੂਆ ਖੋਲਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਸਲਾਖਾਂ ਚੋਂ ਜਾਣਾ। ਨਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੋਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਲੋਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੋਹਣਿਆ। और नतल का डंडा है ना बस सेहतमंद होता है। अच्छा, जब नवी नवी मौला जट आई ना जी सर, तो मेरा एक यार सी अहमद अली जी सर, उनकी फैमिली नाम लेना मुनासिब नहीं है, उनकी वो तो खैर उनके ख्यालात सियासी मुख्तलिफ है, उनकी फैमिली के एक मेंबर जो है पीटीआई की बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट तरीन लोगों में से एक है, वो नत सी। वाह। तो ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਕਿ ਨਤ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈਗਾ, तो लोग बड़े ना उस वक्त नत्ता था चूंकि वो जिस तरह से रोब मौला जट में वो आए थे, तो भाई जी नत्ता दी बड़ी ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਰੋਬ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਰਦਾਰ ਨੂਰੀ नत। अच्छा, तो अब क्या हिकमत अमली है जी? आज भी को फवाद चौधरी साहब और आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने को हल्की फुल्की बात की, आपने की, तो ये अगर शुरू से ही इख्तलाफात नज़र आने शुरू हो जाएंगे, दरारें नज़र आना शुरू हो जाएंगी, तो लंबा सफ़र कैसे तय करेगी पीटीआई और आप? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा ਹਾਂਜੀ, अच्छा, तो नून लीग को टफ टाइम देने जा रहे हैं आप? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਪੱਕਾ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। अच्छा ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। अच्छा, ਲੇਕਿਨ ਉਧਰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਪੂਰੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦੇ। मरीम साहब सुने दौरों वोरों में निकल रही हैं? ਕੱਲ ਸਰਗੋਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਜਲਸਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ताहिर अंजुम साहब भी जा रहे हैं हमारे? ਜੀ ਸਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। पता नहीं मेरा क्यों दिल कर रहा है मैं क्वेश्चन पूछूं। नहीं पूछे ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਟਿਕਟੌਕ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ। अच्छा, पूछिए क्या नहीं, पूछिए? ये उन्होंने खुद ही बोल दिया। आप सदब कुछ कहनी थी, शायद इमरान साहब से पूछना था आपने। जी पूछ लो जी, ਤੁਸੀਂ। इमरान साहब से सवाल था कि जब आप मैच खेलते थे और मैच खेलने जाना है और बेगम जो है वो शदीद नाराज हैं, ओए होए होए। तो क्या आप मैच खेलने जाएंगे या पहले उनको मनाएंगे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी बेगम के साथ कभी कोई ऐसी लड़ाई ये नहीं मेरे ख्याल में पूछना ही चाह रहे हैं कि ऐसा हुआ कि कभी शदीद झगड़ा हो गया हो, नाराजगी हो गई हो और इम्पोर्टेंट मैच हो? नहीं, बस इसकी कभी लड़ाई नहीं हुई है, सारे काम करके सौंदा पांडे तो के स्त्री करके कभी लड़ाई। शाह जी, लड़ाई के बाद तो मेरे ख्याल में मैच खेलने भी चले तो ना खेलने के बराबर है। अच्छा, फिर आप क्या कोई याद आता है कि बड़ी होता है कि खफा हो गई, लड़ाई ना भी हो, बेगम साहबा खफा हो गई, परेशानी तो होती है ना, कभी बेगम खफा है। हाँ, कभी हुआ हो तो तब है, लेकिन सिंगल टाइम ही नहीं, कभी भी नहीं। हमेशा वो कहते हैं ना दुआ हुआ ही, और जाहिर बात है बेगम को पता है कि भाई स्टार आदमी और मैच तो इसके लिए बहुत। आपकी बेगम कभी खफा नहीं हुई आपसे? नहीं, वैसे तो चलती रहता है। अच्छा। हाँ, लेकिन इतना कभी नहीं, अल्लाह रहम करे अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा कोई मैच याद नहीं कि आप खफा घर से निकले हो? नहीं, कभी भी नहीं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह सबके घर में ऐसे ही हो, और दुआ हुआ नहीं ये तो जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਕਿਉਂ ਕਰਾਏ ਨੇ? ਕਿਉਂ? ਛੇਤੀ ਹੱਥ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। और ये बात
सच है। और बताएं। ਬੰਦਾ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਜਾਏ ਸਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ? वही मैंने कहा ना, फिर तो खेल भी ले तो फिर ना खेलना। ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸ਼ਾਟਾਂ ਹੀ ਵੱਜਣੀਆਂ ਨੇ। प्रोग्राम करना मुश्किल हो जाता है तो ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, तो फिर ਤੁਸੀਂ एक बड़ा- ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? नहीं नहीं, मेरी बेगम भी बड़ा जनाब है। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਓ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੁੱਕਿਆ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ। अच्छा, वो पिछले दिनों आपकी वीडियो आई, पिछले दिनों क्या कल परसों, कैफी खलील जो नौजवान हैं और बहुत बड़े आजकल पॉपुलर हैं वो, जी सर। और उनके साथ उनको आप सुन रहे थे तो मुझे अच्छा लगा कि आप बड़े प्यार से उन्हें सर मैं म्यूजिक का जी, मौसीकी बड़ा- का टेस्ट है आप? बहुत पसंद करता हूं। वाह वाह, मैं आलम लोहार बड़ा सुने हैं जी। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आप यानी कि वहाँ रहते हैं और फिर यानी कि पंजाब का ये जो फोक है आप ਜੀ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੋਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਸਰ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ जी जी, यहाँ भी देखे ना अल्लन फकीर साहब को लोग कितना शौक से, आज जी तक सर। अल्लन फकीर जो है वो हमारे दिलों में बसते हैं। पठाने खान साहब जो थे जी सर। वो आज तक हमारे दिलों में बसते हैं। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਲਨ ਫਕੀਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। यही इस मुल्क की खूबसूरती है जी सर। कि लोग जो हैं वो एक दूसरे की जो जुबानें हैं और एक दूसरे की जो कल्चर है इस मुल्क में रहते हुए उससे मोहब्बत करते हैं, उनको ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਲਾਲਾ ਅਤਾਉल्ला ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ हाँ, ਸੁਣਨਾ वाह ਸਰ। वाह वाह, ਲੂਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ सुभान अल्लाह। ਯਕੀਨ ਕਰੋ बड़े कि- लोग, बड़ी दुनिया। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਮੈਂ ਜੀ। अच्छा, खुद कभी आपने गाने की कोशिश की? ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਾਇਆ ਜੀ, अच्छा। ਯਕੀਨ ਕਰੋ। बीवी लड़ के तो सौरे चले गए। इमरान, आपको है मौसीकी का शौक? नहीं नहीं, सुनने का तो है। अच्छा, गाने का एक नहीं। वाहद काम है जो मुझे नहीं आता। अच्छा बाकी ठीक है। अच्छा, आपके जो कोलीग्स हैं ये जो बाद में लौट आई, इनको थिएटर वेटर का बहुत शौक है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि उनकी दोस्तियां भी हैं थिएटर के, हमारे जो दोस्त हैं इनसे, और थिएटर देखने भी जाते हैं। आप जाते हैं या नहीं जी, मैं पहले जाता था। और हम लोग बड़ी ये इंटरटेनमेंट एंजॉय भी करते हैं, और सीढ़ियाँ हम लोग टूर पे भी लेके जाते हैं। बिकॉज सारे दिन का टेंस रहने वाला बंदा रात को जब इनके हम ड्रामे बहुत देखते रहे हैं, और लाइव तो है ही है, और हम सीढ़ियाँ वगैरह भी, और इवन के बहुत सारे पंजाबी इंडियन कहीं भी जाना हो तो वो सीढ़ियाँ स्पेशल लेके जाते थे, और रात को बड़ा एंजॉय करते थे ड्रामा। और कौन से आर्टिस्ट आपको ज्यादा? हाँ, प्लीज प्लीज मुकम्मल कीजिए। बहुत सारे, ये अगर मैं आर्टिस्ट की अगर बात करूं तो अल्लाह मियां जन्नत नसीब करे, अमानुल्लाह साहब, मस्ताना साहब, तारक टैडी, ताहिर साहब, फिर अच्छा, अमानत ये चंद तीनों का साहब। जिनका आपने नाम लिया ना पहले, वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। फौरन ही आपने ताहिर अंजुम साहब का नाम ले दिया। वैसे वो हयात है, मैंने कहा थोड़ा सा आप नहीं मैं बता जो दूं कि ये चले फर्क गए है। हैं, उनका हमारे दिलों में तो जिंदा है। तंदुरुस्ती लंबी जिंदगी दे। हाँ, ये मैं कह रहा हूं, देखिए, हमारी दुआ उनका है रंग उड़ गया सबको बेचारों का। जो रह गए हैं। और मेरा इनके साथ बड़ा एक पुराना ताल्लुक है। और ताहिर बड़ा अंजुम एक साहब? बड़ा- अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि ये क्रिकेटर लवर भी बहुत ज़्यादा हैं। और इन्होंने, अगर मैं बात करूं आज, तो मोहम्मद आसिफ को अगर अर्ली ऑन, शायद किसी को पता नहीं, अच्छा, मैं समझा आप कह रहे हैं बहुत कि ज़्यादा सपोर्ट किया है। अच्छा, मैं समझा आप कह रहे हैं कि उनको खराब करने में इनका हाथ है। नहीं 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 जी, उनको ये सच बात है, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं मुरीद के और हमारा ज़िला एक ही था शेखपुरा, और मैं इस चीज़ को जेन्युइन बता रहा हूँ कि ताहिर साहब ने आसिफ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया अर्ली ऑन, जब वो अर्ली ऑन स्टेज पे था। Very good। हाँ हाँ, ये इनका बहुत बड़ा हाथ है। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਿਅਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਫੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। मैं आना भी चाहिए, मैं तो एक सियासी बात कर रहा हूँ लेकिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फुफ्फी और खाला दो में कहना चाहता अच्छा, मैंने और बंदों के भी नाम लिया, अब इनका क्यों स्पेशल नाम लिया? देखो ना, खाला नहीं जी, अल्लाह ताला सेहत दे और अपने बच्चों में खुश मासी रहे। कहने ना, मासी तो बिल्कुल मां वर्गी होती है। जी सर। अच्छा, फुप्पियां भी मामा वर्गी होंदियां ने, मामा मंडियां नहीं हैगियां साडियां। लेकिन ਅਸੀਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਓ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਨੇ ਆ। बड़े 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 ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਨੇ ਆ। छोटे भाइयों की तरह। मगर ये आसिफ वाली बात मेरे लिए नहीं है, मुझे बड़ी खुशी हुई। जी सर, कोई बात शेयर करें ना आसिफ की। जी आसिफ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ। अच्छा, जी जी जी, ਬੜਾ ये ਅੱਛਾ है। ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ, ਵਾਹ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸਰ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਣਾ ਚਾਹਿਆ। और ये ताहिर पाकिस्तानी करेंसी ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਸੀ, डॉलर आन ਦੀ देर है। अच्छा, ये आपके साथ क्या होता है? सियासत में भी आपके साथ यही होता है? आप जिनके लिए बोलते रहते हैं, जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो फिर आपके मुकाम नहीं होते नहीं है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਪੁੱਛੇਗਾ। और ये शाह जी, ये बात वाकई सच है। ये ताहिर भाई नहीं अकेले, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो जब एक स्पोर्ट का टाइम होता है, जो बंदा उसके साथ भला कर रहा होता है, एंड में
یہ خیر ہمارے ملک کے المیہ کہہ سکتے ہیں، یہ ہمارا یہ نیچر ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہے. جس بندے نے آپ کو سپورٹ کیا اور برے ٹائم پہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو، اس بندے کو سارا آنکھوں پہ رکھیں. درست کریں. لیکن آپ ہم پہ بہتان ترازی کرتے رہتے ہیں، مگر ہم نے مستقل آپ کو دیانتداری سے چاہا. ہماری آپ قدر نہیں کرتے. شکر ہے. ویسے یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جتنا اچھا انسان ہے اتنا اچھا آرٹسٹ بھی ہے. میں نے اس کا ایک ڈرامہ تھیٹر میں بیٹھ کے دیکھا. اچھا کون سا؟ اس میں اس کا کریکٹر تھا، اس کا نام ہوتا ہے حیات. حیات. اس نے آ کے ایسی جوت کی، پورے ہال نے کہا واہ حیات واہ حیات واہ. انہوں نے مینوں بین کرنا سی، سیٹھی صاحب نو بین کر کے چلے گئے. آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں سر تواڈے بارے کہہ رہا سا کہ تسی کہہ کہ میں کوئی بہتان بیازی کرنا وا. نہیں وہ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں ہم نے مستقل آپ کو مسلسل چاہا. سر بڑی مہربانی تسی چاہندے، اسی بھی تانوں بہت چاہنے. شاہ جی ایک شعر سنا دیں اس کی سنا چاہت. دے ایک نہیں شعر. آپ مکمل کریں اپنی بات. میں تو یقین کرو میں صرف تواڈی شخصیت تو متاثر بڑی نہیں، محبت. میں تواڈیاں انہاں کلائیاں تو بھی متاثر ہاں، تواڈے ہونٹاں تو بھی متاثر ہاں، تواڈا ہیئر سٹائل بھی مینوں اچھا لگدا ہے. بڑی نوازش. ایک گلاں بندے نے نہیں کہی دیاں. یار وہ ان کو مکمل کر لے. پنچی مر گئی ہے. سیٹھی صاحب تسی بھی مر جاؤ. ناظرین یہ ہوتا ہے لائیو شو، اور یہ ہوتی ہے لائف کی خوبصورتی اور جو سپونٹینٹی ہے، جو برجستگی ہے، یہی اس شو کی خوبصورتی ہوتی ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے چاہا تو کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے زبردست PSL اسپیشل سے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.